second cell. So we were discussing yesterday in the previous class about the Sertoli cells. है कि नहीं? So today we are actually continuing the cross section of testis. है कि नहीं? तो हम क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं. सो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? टुडे विल बेसिकली रीड अबाउट व्हाट? टुडे वी विल बेसिकली रीड अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ सेल that is called spermiogenic cells. Okay, these are called the spermiogenic cells. Now, as you know, yeah, as we were discussing, that ये जो cells हैं, they are not our own. ठीक है? So, these cells are derived from the क्या? हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? ये कहाँ से डिराइव्ड है? बोलो. Extra mesoderm. Germinal Yes. epithelium. No. These cells are No, derived extra. from the extra embryonic. Okay? Mesoderm. माने Mesoderm. ये जो मेसोडर्म है इससे बच्चा नहीं बना है, तो इसलिए बच्चा जिस सेल से बना है आपका ये उस सेल से नहीं बने हैं. सो बेसिकली दे आर स्ट्रेंजर सेल्स. समझ में आया? तो ये जो सेल्स हैं ये एक्चुअली strangers. Do you understand? So these cells are derived from the extraembryonic mesoderm, comma, then they migrate into the yolk sac endoderm. ठीक है? So these cells are derived from the extraembryonic mesoderm, then they migrate into the yolk sac endoderm, and ultimately they enter into the urinogenital intraembryonic mesoderm. तो समझ रहे हो? अब जाके वो बच्चे के अंदर आया. Hence these cells, okay, hence these cells are actually strangers and attract immune action. Okay, ये लोग घोटाला पार्टी है, इसीलिए इम्यून सिस्टम का एक आंख इस तरफ जरूर रहता है. इम्यून सिस्टम उसको क्या बोलता है? कभी तो अकेले मिलोगी रानी, तब उड़ा देंगे. ओके, so इसलिए immune system does not like these cells, but since they are protected in your body, हम immune system को देख ही नहीं पाता है. Okay, so always remember this about these cells. Okay, now these cells then form the क्या है? Germinal epithelium Misnomer. of the seminiferous tubules. समझे? So these cells then form the क्या? Germinal epithelium of the seminiferous tubules. Okay, bracket में इसको now it is referred to be या thought to be a misnomer. Now it is thought to be a misnomer क्योंकि ये एपिथेलियम आपका है ही नहीं. Okay, so this epithelium is not yours. Understood? चलिए, now these cells are rapidly dividing cells and divide by mitosis for many generations. Okay, this outermost layer of
spermiogenic cells are known as क्या? टाइप ए spermatogonia. Okay, which forms the spermatogenic lineage, and these cells are unipotent stem cells of the sperm lines. मतलब ये लोग क्या बनाएंगे? ऑलवेज स्पर्म. तो ऑलवेज रिमेंबर टाइप ए टाइप बी जो कंसेप्ट है ये आपका टोटीपोटेंसी का कंसेप्ट है. ओके, तो टाइप ए ऑलवेज लिनिएज बनाता है. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर टाइप ए विल प्रोड्यूस लिनिएज एंड टाइप बी इज एक्चुअली द मदर सेल. ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे. जो टाइप ए है दिस विल प्रोड्यूस स्पर्मेटोजेनिक लिनिएज एंड इसको यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स कहते हैं ऑफ स्पर्म लाइन. इसका मतलब ये एक ही सेल बना सकता है क्या? स्पर्म्स. अंडरस्टूड. चलिए, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ए सेल्स डिवाइड बाय क्या? तो टाइप ए सेल्स डिवाइड बाय क्या? बोलो. माइटोसिस Mitosis. और several. Okay, several generations. Generally 7. Okay, 7. to produce 128 cells. Okay, 128 again कौन से cell? Type A. Type A cells. Okay, to produce 128. Okay, type A cells. Understood? तो ये जो सारे हैं ये टाइप ए वाले सेल्स होते हैं. नाउ क्या होगा? नाउ दीज सेल्स. तो अब क्या होगा? ये जो टाइप ए सेल्स हैं ये लोग एक टाइप भी हो मियोसिस. जाएगा. हाँ, दे विल एंटर मियोसिस. वैसे टाइप भी नहीं हो जाता है ना, इट हैज टू एंटर मियोसिस. Yes, sir. Yes. सो नाउ दीज टाइप ए सेल्स एंटर meiotic interphase and are now renamed as type B spermatogonia. Hela, these are actually the sperm mother. Mother cell. Okay, sperm mother cells and will produce sperms. ठीक है, तो ये आपका डिवाइडिंग सेल नहीं है. तो टाइप ए क्या है? वो डिवाइडिंग सेल है. टाइप बी क्या है? वो डिफरेंशिएटिंग सेल है. ठीक है, तो नाउ दीज टाइप ए सेल्स एंटर मियोटिक इंटरफेस and are now renamed as type B spermatogonia. These are actually the sperm mother cells and will produce sperms by कौन सा डिवीजन? मियोसिस. तो समझ रहे हो? Meiotic. नो अदर सेल इन योर बॉडी कैन डिवाइड बाय मियोसिस. उसका कारण क्या है? क्योंकि ये तुम्हारा है ही नहीं. तो why they don't divide like your cells is because they are not yours. They are actually strangers. Understood? So these are actually sperm mother cells and will produce sperms by meiosis. ठीक है? Now these cells divide by meiosis. Meiosis in, आप जानते हो, 2 steps. Okay, in 2 steps. Now
द, इसमें एक नोट पहले लिख लें फिर इसको जस्टिफाई करेंगे. ओके, द spermatogenic cells are arranged in centripetal manner with respect to spermatogenesis. तो ये पॉइंट समझ में आया? अनिशा, Yes, डू यू sir. अंडरस्टैंड दिस टर्म? Yes, sir. क्या मीन समझ में आया? बोलिए. So, like the type A will be followed by type E and so on as spermatogenesis continues. Means they will go towards the lumen. Center. Yes, sir. So they will Center. go towards the center. So spermatogenic cells are arranged in centripetal fashion, a manner with respect to spermatogenesis. The type A spermatogonia lie close to periphery. है कि नहीं? Periphery, whereas the spermatids lie near the center. ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे. इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि इस रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका गारंटेड आता है. ठीक है, चलो, तो ये एक पॉइंट हो गया. नाउ तो टाइप बी spermatogonium becomes the primary spermatocyte. है कि नहीं? Type B spermatogonium becomes the primary spermatocyte कब? बोलिए. After the growth phase. Growth phase of cell cycle. है कि नहीं? तो इसलिए स्पर्मेटोगोनियम फिर G1 S G2 करके आपका क्या बन जाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. तो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम जो है टाइप बी वाला, उसका जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट क्या है? 2N 2N. 2N. ओके, 2C. 2N 2C. बट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का क्या हो जाएगा? 2N 2N 4C. 2N 4C. 4C. Why 4C? क्योंकि S फेज में DNA DNA डुप्लीकेट double. okay, because the primary spermatocyte after growth phase of cell cycle. ठीक है. 8 divides by meiosis 1. 1. Okay, it divides by meiosis 1 bracket रे reductional division. Okay, reductional division. So it divides by meiosis 1 reductional division to produce 2 equal Secondary daughter sperm. cells. Okay, actually why you are writing equal? क्योंकि egg में ये equal नहीं होता है. Okay, so it divides by meiosis 1 to produce 2 equal daughter cells known as secondary spermatocytes. ठीक है, तो ये जो आपका secondary spermatocytes है, okay, so it divides by meiosis 1 to produce 2 equal daughter cells known as secondary spermatocytes. तो इसका जेनेटिक कंपोजिशन क्या हो जाएगा? N to C. N to C. And 2C. 2C. क्रोमोसोम्स कैसे हो जाएंगे? Tetrad. बोलो. क्रोमोसोम्स Tetrad. are dyad. Idiot. ये बरा डिवाइड करी गेलानी टेट्राड कोड आसीबो. Chromosomes are dyad but हाँ सर. with crossing over. ओके, तो क्रोमोसोम्स आर डायड मतलब इसमें 2 आर्म्स होंगे बट इसमें क्रॉसिंग ओवर हो गया होगा क्योंकि आपको मालूम है कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में हो जाता है. ठीक है,
तो इसीलिए आपका अलग अलग लाइंस में सेल होगा। तापरे द सेकेंडरी spermatocytes continue division and they divide by meiosis 2. Yes, it's true. Okay, so and continue division and they divide by meiosis 2. है कि नहीं? ब्रैकेट में ये क्या है? इक्वेशन। Equational. ठीक है, फुल स्टॉप। इट produces, okay, yeah, this division produces two spermatids It's per क्या? secondary secondary spermatocyte. Secondary spermatocyte. spermatocytes। समझ में आया? तो इसीलिए this division produces two spermatids per secondary spermatocyte. So ultimately 4 spermatids are produced at the end of meiosis. Okay, Yes. so ultimately 4 spermatids are produced at the end of meiosis, and okay, and total number of sperm कितना हो जाएगा? 512। क्यों? 128 into 4। Into समझ 4. आया? तो इसलिए this division produces spermatids at the end of each having कौन सा जेनेटिक कंपोजिशन? N, NC. C. NC. Okay, NC genetic complement. Understood? तो कोई शक? चलिए, now what are spermatids? हाँ बोलो बोलो। Sir, after the formation of secondary spermatocytes and spermatids, sir, all the cells are connected by a cytoplasmic bridge. Sir, why does this happen? क्योंकि हम पूरा तरह से डिवाइड किए नहीं है। Why to complete cytokinesis? एक्चुअली वो इसीलिए बोल रहा है कि आपका ये कोई नॉर्मल सेल नहीं है कि इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा। ये सब को जोड़ के रखा जाता है। क्यों? नहीं तो ये चले जाएंगे ना बाहर। तो वी हैव टू Yes, sir. रिटेन दीज सेल्स इन द टेस्टिस, दे आर नॉट फ्री। समझे कि नहीं? इसलिए हम इसको बाहर नहीं sir. छोड़ते हैं। डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है। इन देयर केस द डिवीजन माने जो साइटोकाइनेसिस इज नॉट टोटली कंप्लीट। यू विल सी इन द ड्राइंग, डोंट वरी। ठीक है, तो जो Yes, sir. स्पर्मेटिड्स है, तो स्पर्मेटिड्स आर क्या? स्पर्मेटिड्स आर नॉन फंक्शनल, ओके, नॉन फंक्शनल कॉमा सेल्यूलर कॉमा इमोटाइल कॉमा मेल गैमीट। ओके, मेल गैमीट। अब हम क्या लिखेंगे? स्पर्माटो, ओके, जेनेसिस इज ओवर। तो समझ रहे हो? तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस ओवर। तापर रेगुलेटिंग हार्मोन्स कौन कौन सा है? रेगुलेटिंग हार्मोन्स जो है वो GnRH है। तो GnRH के बाद LH, GnRH आएगा। तो GnRH कहाँ से आएगा? हाइपोथैलेमस। तो GnRH आएगा, फिर FSH प्लस LH। LH. ठीक है, FSH क्या लाएगा? ABP प्लस LH। इसको LH तुमने बोल के जेजेस का अपमान किया है। So this is actually ICSH. ICSH। वो बुक्स में लिखा होता है LH, SSH. बट तुम लोग ये सब बकवास नहीं करोगे। बिकॉज अर्लियर LH बोला जाता था, आजकल मेल्स के लिए स्पेसिफिक टर्म है ICSH। ओके, तो GnRH FSH ICSH को लाता है, FSH ABP को लाता है, ICSH टेस्टोस्टेरोन को लाएगा। समझ रहे हो? तो इसलिए ये सारे मिल के आप क्या क्या करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर? Genesis.
चलिए, तो इसको थोड़ा Yes, sir. हम फोटोग्राफ में देखने का कोशिश करेंगे. ओके, सो नाउ विल ट्राई टू सी द फोटोग्राफ्स. ओके, ना अगर आप यहाँ भी देखो वो ड्राइंग दिख रहा है. इफ यू कैन सी दिस वन, सो दिस इज ऑल्सो शोइंग द ड्राइंग. देख रहे हो, ये छोड़ नहीं रहा है, सर्टोली सेल पकड़ के रखा है. देख रहे हो, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द सर्टोली सेल. ये न्यूक्लियस है, तो ये तक छोड़ो नहीं, पूरा बांधा हुआ रखा है, समझे, नहीं तो खिसक के भाग जाएगा. तो इसलिए सर्टोली सेल्स स्पर्म्स को छोड़ते हैं. उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्पर्मिएशन. Spermiation. परमिएशन. इसलिए जब तक सर्टोली सेल्स छोड़ेंगे नहीं, आप कहीं भी नहीं जा सकते जानी. चलिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए. प्लीज सी द डायग्राम नंबर, डायग्राम ऑन द राइट. नो, तो इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए. ओके, नाउ आर यू सीइंग दिस डायग्राम? ना आप लेवलिंग करेंगे तो आप देख रहे हो ये बाहर से ये अंदर आ रहा है. एंड दीज आर एक्चुअली द टाइट जंक्शन. दिस इज द लुमेन. समझे कि नहीं? ये लुमेन है एंड ये आपके सेल्स हैं. सो नाउ व्हाट इज सेल ए? सेल ए क्या है? यू कैन से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. टाइप ए. Yeah. ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? Type A. टाइप ए. नाउ ये मियोमाइटोटिकली डिवाइड किया तो Mitotically, ये yes, sir. भी क्या बन जाएगा? Type A. टाइप Type A. ए. टाइप ए. फिर ये माइटोटिकली डिवाइड किया Type A. तो ये Type बन A. गया Type A. टाइप ए. तो ऐसे टाइप ए चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा. वन ऑफ द डॉटर सेल्स ने कुछ अलग सोचा. तो अब ये जाना चाह रहे हैं कहाँ? द रोड नॉट टेकन. समझ रहे हो? तो Meiosis. इसलिए Yes, sir. आपका हर कोई एक ही रोड में जाता है, कालू के रोड में. तो इसने थोड़ा जालू के तरफ जाने का सोचा. समझे कि नहीं? तो इट टूक द रोड नॉट टेकन. तो दिस एंटर क्या? मियोसिस मियोसिस. इंटरफेज. समझ रहे हो? तो ये आपका मियोसिस इंटरफेस के तरफ अपना मूवमेंट कर रहे हैं. तो इसलिए अब ये बदल जाएंगे एंड ये क्या बन जाएगा? सो नाउ दिस विल बी रेफर्ड टू एज टाइप Type B. Type B. बी. Type B. स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, ये Gonia. आपका टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया हो जाएगा. बोले बोले. नाउ अब ये ग्रोथ कंप्लीट करके रेडी टू डिवाइड है. सो इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो डी का. Primary spermatocyte. Primary spermatocyte. प्राइमरी स्पर्मेटो. देख रहे हो ये सब कहाँ कहाँ के बुक के डायग्राम्स हैं, समझ रहे हो? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक है तो साइट. नाउ अब ये क्या है? दिस इज Secondary spermatocyte. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. One. ये Meiosis one. डिवीजन है. तो मियोसिस वन. तो ई क्या हो गया? सो दिस इज Secondary द spermatocyte. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. ठीक है, मैक्स शॉक मारता वो सीट तक वो सुआ पछर लग जाए. तो सेकेंडरी स्पर्म एक्चुअली सुआ और मैक्स जो है वो जन्म जन्म के दोस्त हैं. तो अगर आप सुआ को टच भी करोगे ना वो गोली मार देगा तुम. देख रहे हो चिल्ला रहा है मैं माधव पे. तो समझ रहे हो? तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है. ये कौन सा डिवीजन है? मियोसिस. Meiosis two. मियोसिस टू. तो तुम खुद सोचो, इतना सुंदर डायग्राम आपको किसी ने भी दिखाया स्कूल में? देख रहे हो एवरी स्टेप ऑफ Yes, sir. जेजेस का हर शब्द इन्होंने गाना गा लिया. देख रहे हो, मैंने पूरा छांचर पड़ी पड़ी चालू. तो तुमको लगता था सर पता नहीं इधर उधर का बकवास करते हैं, बट यहाँ देखो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप आपका गाना गा रहा है. तो अब ये कौन सा स्टेप आ गया? सो दिस इज कॉल्ड
Spermatid. Spermatid. Spermatids. तो समझ रहे हो। एंड फिर ये एक और प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस का नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड Spermiogenesis. स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे? सो दीज आर Spermatozoa. Spermatozoons. हाँ, स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्म। Spermatozoans. अब ये कौन सी विधि है? सो दिस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। Spermiation. समझ Palmiation. रहे हो, देख रहे हो, हर चीज ऐसा है जैसे ये मैंने डायग्राम खुद बनाया हो ना। क्या बोल रहे हो आप? तो कुछ तारीफ Yes, sir. करो। वो गाना कौन सा है जो छिचोरे का, कुछ नाम तो पूछो ना कुछ काम, तो ऐसे कुछ गाना नहीं है ओ सुशांत का? तो ऐसे कुछ गाने गाओ गुरु के बारे में, समझे कि नहीं? चलिए, तो देख रहे हो पूरा एग्जैक्टली ऐसे है जैसे स्क्रिप्टेड फॉर जे जैसे ही। सो आई एम सेविंग दिस डायग्राम एंड आई विल बी सेंडिंग इट टू यू। चलिए, तो ये एक डायग्राम है, तो ऐसे अनेक डायग्राम हम प्रैक्टिस करेंगे। तो और देखिए ये आपका है, दिस इज आई डोंट नो विच बुक, बट यू सी हैंड क्राफ्टेड फॉर जेजेस। तो अब हम लोग एक और डायग्राम में जाएंगे। अगेन यहाँ देखो दिस, ओके, ये जो डायग्राम पे ध्यान दीजिए। फाइन, तो इट इज एज एग्जैक्टली सेम। आप देख रहे हो स्पर्मेटोगोनिया Yes, sir. है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स, एंड ये पकड़ के रखा है, वो छोड़ नहीं रहा। सो दिस इज द स्पर्मेटोजोआ। क्लियर? चलो, अरे किसका माइक गड़बड़ हो रहा है, धुआं उड़ा रहा है। चलो, आप माइक बंद कर लिया करो, जब चाहिए खोल देना, नहीं तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई अर्थक्वेक होने वाला है। तुम हार्ट फेल कराओगे क्या द पुअर गुरु का? अब देखिए ये आ गया हमारा एक और सुंदर डायग्राम, एंड दिस डायग्राम इज एक्सप्लेनिंग व्हाट अभिषेक वाज टेलिंग कि इट इज स्ट्रिक्टली embedded in the cytoplasm of the Sertoli cells। देख रहे हो? तो आप थोड़ा इसको ध्यान दीजिए। हम देख रहे हो इसने कितना सुंदर डायग्राम है, वो पैरेललिज्म दिखा रहा है। एंड माय डियर अभिषेक, शायद ये किताब मैंने नहीं लिखा है ना, क्या लग रहा है आपको? ऐसे ये किताब किसने लिखा है? मैंने लिखा है ना, दसो। बट आप No, sir. देखिए, टाइप ए भी है, टाइप बी भी है, देख रहे हो कि नहीं? तो देखो, Yes, sir. Yes, sir. तो जो जजेस ने कह दिया वो कांच की लकीर। तो देख रहे हो? तो नाउ तो देखो, नो अदर बुक्स राइट दीज थिंग्स, नॉट इवन योर कालू बुक्स, है कि नहीं? तो आप यहाँ देखिए, तो जो जो चीज हमने कह दिया वो आ गया। क्लियर? सो नाउ लेट अस सी हियर। सो इसमें आप क्या देख रहे हैं? ओके, तो ये आपका कौन सा सेल है? टाइप ए।